हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेक्चर 2 अकाउंट्स के अंदर में क्लास 11 और सीए फाउंडेशन के बच्चे लोगों के लिए है ये। तो लेक्चर 1 में बेटा हमने लास्ट क्या सीखा था कि गोल्डन रूल क्या होता है, ये हमने सीखा था एंड आपका होमवर्क था कि आप इस रूल को याद करके आओगे। तो अभी तक हमने सीख लिया कि अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, अंडर विच रूल, गोल्डन रूल, ट्रेडिशनल रूल हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, मॉडर्न रूल सीखने वाले हैं, ठीक है। और फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ रूल सीखेंगे जिसमें हम डेबिट क्रेडिट निकालना सीखेंगे, जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे रूल लगाकर। गोल्डन रूल से भी सीखना है, मॉडर्न रूल से भी सीखना है, ठीक है। तो आज अपने किस पे फोकस करेंगे, मॉडर्न रूल पे। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और यहाँ हम सीखने वाले हैं मॉडर्न रूल, अमेरिकन रूल। सो अंडर मॉडर्न रूल accounts are classified into again two types: permanent account and the second one is temporary account. Under modern rule, the accounts can be divided into permanent account and temporary accounts. Permanent account can further be classified into assets, liabilities and capital. On the other hand, temporary account is classified into expenses or expense and revenue. So what we can say is we have how many heads of accounts? 1, 2, 3, 4 and 5. These are the main heads of accounts under modern rule. So you can write there are 5 heads of accounts. 5 heads of accounts. Number 1, assets, expenses, capital, liabilities and revenues. So सब कोई इसको पढ़ें और read aloud. How many of accounts are there? 5 accounts. What are they? What are they? First one is assets, then capital, liability and revenue. You should try to remember the heads of accounts in this order only. What is the reason? I'll tell you after some time, but try to learn this in this specific order. But if for the newcomers, the students who are doing it for the first time, in order to learn these items, you can remember a term, and the term is, you can remember a term, and that term is
clear. What is the term? Now if you remember clear, then you remember all the 5 heads. What is C? What is L? What should be E? What is A? And what is R? So if you learn this word, if you remember this word clear, then you know all the 5 heads. After memorizing or keeping this in mind, you should try to learn these heads in the following order, in this orderly fashion. First one should be your expense, second one should be your expense. Assets and expense. First one is assets, second one is expense. Why we are learning or saying it together? Because when we will learn the rule of debit and credit, this will help you. So how will you learn? What is the rule? Let's discuss rule also. So I am writing the rule here only. Okay. So first of all, you have assets and expenses. Asset and expenses have debit nature. What is the nature of asset and expense? डेबिट का शॉर्ट फॉर्म ये है, सिंबल क्या है, डी स्मॉल आर, डेबिट. कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू का नेचर क्या होता है बेटा? ये नेचर है, ये रूल नहीं है. क्या है ये? एंड ये क्वेश्चन यहाँ पे आके हमारे पास रुका हुआ है कि सर डेबिट और एसेट और एक्सपेंस का नेचर आप डेबिट क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो फिलहाल कि ये डेबिट नेचर का होता है. क्यों होता है ये हमारा क्वेश्चन मार्क रहा, मैं आगे सिखाऊंगा. आई विल टीच यू दिस. नाउ इन मॉडर्न रूल इज़ वेरी इजी because here you have to just focus on whether an item, an account is increasing or decreasing. मॉडर्न रूल सारे बच्चों के लिए बहुत आसान होता है, लॉन्ग रन में हर जगह ये लगता है, तो ये ही याद करने से आपका सारा अकाउंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. एक ही रूल आप चला सकते हो. अभी से दोनों सीखना है मेन, इनिशियली दोनों का ज्ञान होना ज़रूरी है, लेकिन आगे हम मॉडर्न रूल ही अप्लाई करेंगे. तो ये आसान क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें केवल देखना पड़ता है कि कोई भी अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है कि, बस यही नियम, यही ध्यान रखना है आपको कि बढ़ रहा है कि, इसी से नियम है. इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है. तो चलिए यहाँ देखते हैं. अगर एसेट और एक्सपेंस बेटा क्या हो रहा है? इंक्रीज़. क्या हो रहा है? इंक्रीज़ का मतलब होता है अगर वो बढ़ रहा है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना होगा. लेकिन अगर ये दोनों क्या हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू हमें क्या करना है, अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ तो ट्रांजैक्शन पढ़ के तो देखेंगे इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है. तो अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट के चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना है? क्रेडिट. और डिक्रीज़ करने के लिए क्या करना है? डेबिट. तो बस बेटा ये इतना सही रूल है. अब बस इसको इतना सा ध्यान रखो. समझ गए? इजी है ना? कंपेयर टू गोल्डन रूल ये ज़्यादा इजी लग रहा है कि इसमें सिर्फ देखना है बेटा इंक्रीज़ हो रहा है कि, बस इसी से अपना काम बन जाएगा. समझ रहे हैं आप सब? कोई डाउट? इस रूल को आपको याद रखना है. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे क्या बेटा? सारा प्रैक्टिकल्स हम सारा कवर कर लेंगे. जर्नल्स में आ जाएंगे, प्रैक्टिकल में आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास में ही. तो आज इसको अच्छे से करना है. सो व्हाट वी हैव लर्नड कि भाई हम लोग का मॉडर्न रूल में अकाउंट का 2 मेजर क्लासिफिकेशन है, परमानेंट अकाउंट और टेम्पररी अकाउंट. फिर क्वेश्चन उठता है सर परमानेंट क्यों बोल रहे हैं, टेम्पररी क्यों बोल रहे हैं? तो फ़िलहाल मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, हो सकता है आपको ये समझ में ना आए, बट आगे चल के ये समझ में आएगा आपको कि क्यों.
तो परमानेंट अकाउंट क्या होता है? परमानेंट नाम ही से है कि जब तक बिजनेस रहेगा ना बेटा ये अकाउंट रहेगा। एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, जब तक बिजनेस रहेगा ये तीनों अकाउंट रहेगा। टेम्पररी अकाउंट क्यों? क्योंकि साल के एंड में हम ये दोनों अकाउंट को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। क्या करते हैं? हर साल के एंड में उस साल का जितना भी एक्सपेंस और रेवेन्यू है वो क्लोज हो जाता है, इसीलिए इसको टेम्पररी बोल रहे हैं। क्योंकि एक साल के लिए खुला, फिर साल के एंड में बंद हो गया, फिर अगला साल नया आएगा, फिर अगला साल का एंड में बंद हो जाएगा, एंड इस तरीके से ये चलता है। तो ये टेम्पररी नेचर का दिख रहा है ना, इसीलिए हमने क्या नाम दिया इसको? टेम्पररी अकाउंट। इज इट क्लियर? अब हमें सीखना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट यूजिंग मॉडर्न रूल। हमने क्लासिफिकेशन किस रूल से सीखा था? ट्रेडिशनल से सीखा था, गोल्डन से। अब हमें क्या सीखना होगा? मॉडर्न से भी क्लासिफिकेशन सीखना होगा। तो आप जब हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे उसका लिस्ट हमारे पास है, देखिए आपके पास है क्या? ये रहा, हमारे पास है ना। तो आप उसी लिस्ट को निकाल लीजिए और अब हम इसको क्लासीफाई करने वाले किस रूल से? मॉडर्न रूल से। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच कर लिया था, अब आप लोग किससे करने वाले हैं? मॉडर्न से। तो अब जो येलो इंक मैं जो यूज़ करूँगा, मार्कर पेन, ये जो आंसर्स होगा ये हमारा किसका होगा? मॉडर्न रूल का आंसर्स होगा। तो मैं यही मेंशन करूँगा, आप भी अपने कॉपी में यहाँ मेंशन कर सकते हो, बगल में जगह है तो। ठीक है, सिर्फ इनिशियल्स लिखूँगा मैं, पूरा नहीं लिखना होगा, सिर्फ इनिशियल। एसेट है तो मैं यही लिखूँगा, समझ जाओगे। चलिए आप बताइए कैपिटल क्या होगा बेटा 5 हेड्स में? 5 हेड्स याद भी तो है, होना चाहिए ना। 5 हेड्स का नाम याद है ना? एसेट, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी और। तो आप मेरे को बताइए कैपिटल क्या होना चाहिए? कैपिटल कैपिटल ही रहना चाहिए। ड्राइंग्स क्या होना चाहिए? ये भी कैपिटल ही है। कैश क्या होना चाहिए? एसेट। तो देखो जहाँ भी रियल अकाउंट लग रहा है ना वो सब क्या बनने वाला है? क्योंकि रियल अकाउंट किसको डिनोट करता है? एसेट को ना। लॉजिक समझ रहे हो तो कि नहीं? जहाँ नॉमिनल अकाउंट होगा, देखो लॉजिक समझो, जहाँ नॉमिनल अकाउंट होगा या तो वो एक्सपेंस होगा या वो रेवेन्यू होगा। जहाँ रियल होगा वो सारा क्या है? एसेट होगा। कैपिटल से रिलेटेड, ओनर से रिलेटेड जो भी अकाउंट है वो सब क्या बनेगा? कैपिटल। और जो टेंशन है बाहरी लोगों को देना है वो मेरा क्या बनने वाला है? तो जो भी मुझे देना है वो मेरा क्या बनने वाला है? बस यही 5 हेड्स था। बेसिक में भी मैंने आपको यही 5 टर्म पे फोकस करवाया था कि पहले ये 5 सीखो अच्छे से। कैश एसेट है, क्लियर है। इंटरेस्ट पेड क्या है बेटा? क्या होगा इंटरेस्ट पेड? बताना तो। क्या लिखा है यहाँ? पहले ही आंसर लिखा हुआ है, क्या है? नहीं नहीं, इधर क्या लिखा है बेटा? एक्सपेंस, तभी तो नॉमिनल था। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा? मिला है ना, इनकम। क्या है ये? रेवेन्यू। बैंक अकाउंट क्या होता है? बैंक में हमारे पैसा है तो मेरा एसेट हुआ, क्योंकि मुझे पैसा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैंने बैंक से अगर ज़्यादा पैसा निकाल लिया है तो वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी, मुझे वापस चुकाना होगा। ठीक है बेटा। बैड डेट क्या होगा? देखो लिखा है ऑलरेडी, लॉस। लॉस किस कैटेगरी में आएगा मॉडर्न रूल में? एक्सपेंस लॉस एक साथ ही ले लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी देना बाकी है, क्या होना चाहिए ये? लायबिलिटी, पक्की बात। देना बाकी है, टेंशन। खर्चा देना बाकी है तो टेंशन, लायबिलिटी। प्रीपेड रेंट, बेटा रेंट हमने प्रीपे कर दिया है। क्या कर दिया है? प्रीपे माने पहले से दे दिया। खर्चा अगर अपने पहले से दे दिए हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा, क्या बनेगा वो? एसेट। समझ रहे हो क्लासिफिकेशन करने का तरीका क्या है? अब यहाँ आइए,
परचेजेस क्या है बेटा, देखो परचेज में पहले ही लिख दिया है। परचेजेस क्या है, खर्च करता है बिजनेस, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। बिजनेस सेल कर रहा है तो बिजनेस के लिए क्या है, रेवेन्यू। कैरेज इनवर्ड, भाड़ा दे रहे हैं अपन, क्या है ये, बैड डेट हमने रिकवर कर लिया। पहले का कोई नुकसान था, जो आदमी पैसा नहीं दिया था वो अब हमें पैसा वापस दे दिया, तो क्या बना वो, अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट क्या होगा, अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या बताए थे, अर्नड बट नॉट, लिखवाए थे, लिखा हुआ आपके पास। अक्रूड वर्ड का मतलब क्या होता है, अर्नड बट नॉट, कमा नहीं है लेकिन मिला, मिलेगा ना, क्या बना। तो देखो इंटरेस्ट देख के एक्सपेंस मत कर देना बाबू, ठीक। इंटरेस्ट देख के नॉमिनल अकाउंट मत कर देना, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, अक्रूड, तो मिलना बाकी है तो एसेट हो जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट में क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। गुडविल क्या है, एसेट्स है, तो ये तो हम लोग सीखे थे पूरा अच्छा से, इनटेंजेबल एसेट होता है। प्लांट एंड मशीनरी भी क्या है, टेंजेबल एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग भी क्या है, एसेट्स है। तो ये हमने बेटा क्या कर लिया, हमने मॉडर्न रूल से भी क्लासिफिकेशन सीख लिया। और अगर आपको सम्स या अकाउंट्स चाहिए क्लासिफिकेशन के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास आप कर सकते हो, ठीक है। फ्री डेमो क्लासेस अभी हमारे गिरीश पार्क सेंटर में और आलम बाज़ार सेंटर में चल रहा है, तो बिना डिले किए फटाफट आइए, ठीक है। और आगे जो नेक्स्ट क्लास हम लोग करने वाले हैं उसमें हम सीखेंगे कि हम जर्नल कैसे बनाते हैं अलॉन्ग विद एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। मतलब ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई भी करेंगे, रूल भी लगाएंगे, और रूल लगाने के बाद फिर अपने कहाँ पहुँचेंगे, जर्नल्स में बनाना सीखेंगे। तो अब बेटा नेक्स्ट क्लास हमारा प्रॉपर प्रैक्टिकल क्लास होने वाला है, और ये हमारा बेस होगा जिसके हेल्प से हम अपने जर्नल को बड़े आसानी से कर लेंगे। नहीं तो बेटा आपको क्या होता है, बच्चे कर करके उसको याद हो जाता है, उसको पता नहीं होता कोई रीज़न, वो सिर्फ लगाता, आया डेबिट गया क्रेडिट, बोलता यही अकाउंट्स है, बहुत आसान है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, हमारे वीडियोस को देखते रहें तो आपको समझ में आएगा कि अकाउंट्स कितना मज़ेदार चीज़ है, और हर चीज़ के पीछे जो रीज़न है अपने वहाँ पे उसको क्लियर करते हैं। जो हमारे वीडियोस को अभी तक फॉलो कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल ये समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को सीखना और पढ़ना चाहिए। ये अपना बेस रेडी करेगा, और आगे चलकर आप कुछ भी और कोर्स करते हो, सीए कर रहे हैं, फाउंडेशन जो बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मिलते हैं इसी तरीके के और वीडियोस के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू।